الله الرحمن الرحيم. اہل بیت میں کون کون ہیں؟ میں اس کا جواب ہلکا سا دے رہا ہوں. میں جی کی مطلب ہونا ہے جی اووی 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 اووی. میں جی تھانوں کیڑی ٹینشن؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں. 2 3 4 5 بندے نہیں تسی پاویں 100 پا لو، مجھے کیا ٹینشن. لیکن ترازو ہے، ایک تھرمامیٹر ہے، ایک چیک اپ ہے. آج کل تو کرونے کا چیک اپ ہو رہا ہے نا، اس سے بڑھ کر کرونا صرف جسموں کو خراب کر رہا ہے. یہ کرونا جو ملا اعظم نے لگایا وہ تمہاری روحوں کو خراب کر رہا ہے. اس کرونے سے بچو جو تمہارے ایمان کو خراب کر رہا ہے. اس کرونے سے کیا ڈرنا؟ اوے کرونا کیڑے بندے رو دے 200-400 پہ مار دے نا، اور جو تمہاری روحوں کو خراب کر رہا ہے وہ میرے نبی اور اس کی اولاد سے بغض ہے. اور یاد رکھنا میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ اب قرآن ہے ایک پلڑے میں، قرآن سچا. اچھا یہ قرآن کب سے سچا ہے؟ میں سوال مشکل جا کر سڑیا بھئی قرآن کب سے سچا ہے؟ مطلب 500 سال تو 1000 سال تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایت نہیں ہویا قرآن آیا ہے تو 40-50 سال تیرا جھوٹا رہا ہوئے بعد صاف ستھرا کر کے اللہ نے کہے اے ہون سچا ہویا ہے. اینو دھوتا کے اللہ نے آکھیا بھی پہلا گندا سی تے میں ہون صاف کیتا ہے. کہ اللہ بھلا کرے دوجے پاسے بھی وہ بندہ نہیں آ سکتا جنہوں تساں دھو کے پاک کیتے ہوئے. جنہیں 40 سال کلمہ نہیں پڑھیا تے انہوں نے آکھیا اشہدو لا الہ الا اللہ تے انہوں قرآن دے مقابلے تے آ جائے. یار میری گل ہے پڑھیا دی گل ہے یار، اور دونوں ہم وزن ہیں. اگر قرآن پہلے سی نعوذ باللہ جھوٹا دے بعد اچ قرآن نو یاد آیا ہو میں قرآن میں تو سچا بننا ہے، یا کسی نے دھوتا آ کے انہوں پاک کیتا پہلا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نپاک سی تے بعد شرف سوڈے نال زیتون نال گلاب دے عرق نال آب زمزم نال انہوں دھو کے اللہ نے آکھیا چلو انہوں پاک کر سڑیا تے انہوں منو. نہیں، یہ جب اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا، جب لکھا کروڑوں اربوں خربوں سال پہلے، جب سے پاک ہے تو اس کے مقابلے میں وہ آئے گا جب وہ ہے جب سے پاک ہے. کوئی اگر ایسا ہے جس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو اور ماں نے جنم دیتے سجدہ کیا ہو اسے دوسری طرف بٹھا دو. اگر نہیں ملے گا تو پنتن پاک کے گھرانے کو صرف پانا. بات سمجھ میں آ رہی بیٹے؟ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، ماشاءاللہ سر دے دے سرے میداں وہی سرفراز ہوتا ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہیں سے پنج تن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. بس بیٹے میری بات کو سمجھے. یہ محفلیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم 2-4 نعتیں پڑھیں قصیدے پڑھیں، واہ واہ بلے بلے مزہ آ گیا، واہ جی واہ مزہ آ گیا. کیا مزہ آیا؟ اگر علم و شعور و آگہی نہیں لی، اگر تدبر نہیں لیا، اگر فہم نہیں لیا، اپنے مزاج اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا تو کوئی مزہ نہیں آیا. اس کے لیے تو آپ کسی غلط جگہ جا کے میوزک سن لے تو بڑا مزہ آ جائے گا. آپ کہیں گے جی بڑا مزہ آیا. ایسا مزہ نہیں لینا، مزہ وہ لینا ہے جو ایمان کو مضبوط کرے، جو عقیدے کو مضبوط کرے، جو نبی اور نبی کی آل کے احترام کو مضبوط کرے. اس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں. اور سن لو سید ہوں آج ڈگر سے ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں کچھ کڑوی سی بات اگر ہو جائے تو میں معذرت آپ سے کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ. آپ زمیندار لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگ ادھر بیٹھے ہیں زمینوں والے، میں زمینوں کا لفظ بار بار لے رہا ہوں. تو کیا ہے جب آپ کا باپ دادا میری بیٹی تواڈے بڑے وڈیرے پیڑیاں لاندے نے، ہل چلاندے نے، بڑا کچھ کر کے اب اس میں کوئی مونجی لگاتا ہے بڑی محنت کر کے، اب مونجی فصل تیار ہوتی ہے، کوئی دشمن آپ کی مونجی یا کنک کے کھیت کو آگ لگا دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کے ابو نے وہ باغ لگایا، وہ فصل لگائی ہے، یا آپ کے ابو نے کوئی باغ لگایا تھا وہ فصل دینا لگا، کوئی آ کے کلاڑی سے سارا کچھ کاٹ کے چلے جاتا ہے.
आग लगा देता है। आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए कि हाथ डालो जी वाह भाई वाह, मेरे अब्बे ने बाग लाया सी, इन्हें रिपोर्ट सड़िया, वेरी गुड। ऐसा करोगे कि उसे बुरा कहोगे? अल्लाह भला करे। हमारे सैयदों के बाप दादा ने इस दीन के बाग को अपना खून देकर अपना खून देकर इस दीन के बाग को उगाया है। मेरे नबी का दीन था प्यार और मोहब्बत का, नफरत का नहीं था। मेरे नबी ने तो कहा था कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय उसके जो अल्लाह की बारगाह में तकवा करता है। ये बात है। यहां पे अलग अलग हो गया, यहां पे दीन का मजाक उड़ा दिया गया। अब फिरके ही फिरके हो गए। फिरके पता किस तरह हुए? बेटे सुन लो, अगर हम ये कुरान लेते सिर्फ उनसे जिनके बारे में हुक्म है, सूरह नमल पारा नंबर 14 आयत नंबर 43, अल्लाह ने कहा फस्सलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो अहले जिक्र से लो। अहले जिक्र कौन है? अल्लाह ने कहा जिनका जिक्र मैं अर्शों पर अकेला नहीं, मेरे फरिश्ते और मैं कर कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू युसल्लूना अला नबी, और मैं और मेरे फरिश्ते मेरे नबी का और उसकी आल का जिक्र अर्शों पे कर रहे हैं। ये नबी और उसकी आल, ये अहले जिक्र है। तो कुरान ने कहा या नबी से इल्म लो या उसकी औलाद से लो। काश हम नबी से या उसकी औलाद से सिर्फ इल्म लेते। हम अपने जगह लगी हुई दुकानों से ये माल ना खरीदते दीन का। जब जगह जगह मौलवियों से हमने खरीदा तो दीन में फिरके बन गए। किसी ने कैसा माल दिया, किसी ने कैसा दिया, किसी ने कैसा दिया। और खुदारा बस लास्ट बात कर रहा हूं, साजद बरेआम बेटे, बनी बाशना वालों, आपने पूरी जिंदगी गुजार दी इसी सहरा में, दहशत में सफर करते मेरे नबी के इश्क में। मेरी अब बात सुन लीजिएगा, दर्द दिल की बात है। हमारे यहाँ चंद एक फिरके पाए जाते हैं। क्योंकि मैं सैयद हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं कि जब मैं सिर्फ अल्लाह 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 करता हूँ, लोग कहते हैं शाह जी, शाह साहब तुसी अहले हदीस हो, शायद तुसी भाभी हो। क्यों? तुसी हर टाइम अल्लाह अल्लाह ही कर दो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो अगली बात, जिन दिनों में मैं ज्यादा तस्बीह करता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह या नबी अल्लाह, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। लोग कहते हैं शाह जी तुसी सुन्नी हो? सुन्नी भाई क्यों भाई हर टाइम तुसी या मोहम्मद पे कहते हो? अल्लाह अल्लाह करिए तो भाभी बन गए, है ना? नबी कीता थे सुन्नी बन गए। जब मैं करता हूँ अली 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 अली, सारे कहते शाह जी गल सुनो तुसी शिया ते नहीं हो गए? भाई क्यों शिया क्यों हो गया मैं? वो तुसी अली अली करते हो भाई। अच्छा मैं क्या करूं, मेरा गुजारा ही नहीं तीनों के बगैर। मैंने तो अल्लाह अल्लाह भी करना है, मैंने नबी 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 भी करना है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि नबी नबी किया जाए। अल्लाह कह रहे मुझे वो कलमा पसंद नहीं जिसमें सिर्फ ला इलाहा हो। अल्लाह कह रहे इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ना तो मेरा कलमा है। तो मैं अल्लाह अल्लाह करूं, अल्लाह पसंद ही ना करे, अल्लाह उठा के मेरा कलमा मुंह पे मारे कि मैनू यह कलमा नहीं चाहिए जिसे मोहम्मद पाक कोई नहीं। जब मैंने मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ा तो उन्होंने कहा मेरे अली का जिक्र करो, मुझे अली के बगैर मेरी कोई इबादत कबूल नहीं। तो मैंने अल्लाह को भी खुश रखना है, रसूल अल्लाह को भी खुश रखना है, मेरा अली के बगैर गुजारा ही नहीं। प्यारे शाह जी भागट वालों, अफसोस के साथ कह रहा हूं कि देखो पीके शरीफ वाले हो, मुश्ताक अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। जितने अहले हदीस भाई हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर एक बात कर रहा हूं। जो भी मेरे भाई हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नेट पे आएगी, जो यहां पे सुन रहे हैं उनसे भी और जो बाद में सुनेंगे उनसे भी हाथ जोड़कर कि अहले हदीस कहते किसे हैं? उसे जो नबी की हदीस पर अमल करे। है ना गल? नबी दी हदीस उते अमल करन वाले नू की कहंदे ने? अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। जब अहले हदीस कहते हैं जो नबी की हदीस पर अमल करे, तो अब मेरे नबी की हदीस सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी,
माजा, इब्ने हम्बल, सारी कुतुब में भरी पड़ी है। नबी की हदीस, जो हदीस पर अमल करे, नबी पाक ने कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हदीस है, हदीस जो बोलना है ना, वो जो लिखा गया ना हदीस, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझ मोहम्मद को राजी किया, और जिसने मुझ मोहम्मद को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। ये हदीस है ना। तो मैं अहले हदीस भाइयों से कहता हूं कि आप अपनी मस्जिद में ये हदीस क्यों नहीं पढ़ते? टेंशन तो नहीं हो रही भाई? पूछने में कोई अर्ज नहीं। मेरे बच्चे मेरे से छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं, अबू जी ये क्या है, ये क्या, ये क्या। अहले हदीस बड़े मोहतरम है कि यार ये अहले हदीस हो तो ये हदीस क्यों नहीं पढ़ते? तो क्या नबी पाक की हदीस नहीं कि अपनी महफिलों को अली के जिक्र से ज़ीनत दिया करो? क्या सही मुस्लिम और सही बुखारी में यह हदीस नहीं है कि अली को मुझसे वही मंजिल है जो हारून को मूसा से थी? क्या ये हदीस नहीं, मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला? अली का जिक्र अहले हदीस भाइयों क्यों नहीं करते? और शियों के डर से, शियों के बुग़्ज़ की वजह से। मुझे अच्छा लगा पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल लेवल के एक अच्छे आलमे दीन है तारक जमील साहब, पिछले दिनों ने एक बात की कि लोगों ने शियों के बुग़्ज़ की वजह से, लफ्ज़ उनके हैं मैं बयान कर रहा हूं, शियों के बुग़्ज़ की वजह से लोगों ने अहले बैत का एहतराम करना छोड़ दिया कि असी अली अली करांगे तो शिया कर देने, वो हर टाइम फातिमा फातिमा कर देने, सानू की फातिमा दी, वो हसन हुसैन दा जिक्र कर देने, वो तो शिया कर देने, असी क्यों करिए? इसका मतलब है अच्छी चीज अगर कोई भी ले तो तुम अच्छी चीज को छोड़ दोगे? भाई शिया करते हैं तो करते रहे, तुम क्यों छोड़ रहे हो? यार किसी के बुग़्ज़ की वजह से तुम आले रसूल को इग्नोर कर दो? यार आपका बाप बैठा हुआ हो और आपका दुश्मन आपके बाप को सलाम करे तो आपके अब्बा जी हुन मेरा तो गया, मेरे दुश्मन ने तो सलाम किया है, ओए अब्बा छड़ दोगे? यार अब्बा छड़िया नहीं जाता, जे दुश्मन सलाम करे तो उन्होंने आखीदा है तू दुश्मन है, मेरे प्यो नु सलाम करने आ मेरे सीने लग। ओए शिया सो भैड़े सही नबी दी औलाद दा एहतराम करते ने तो उन्होंने आखो आओ सीने लगो। माशाअल्लाह क्या बात है। यार मैंने किसी शिया को नहीं देखा जो नबी की औलाद की बेहतरामी करता हो, क्योंकि मेरे खानदान में है, मेरे खानदान में सुन्नी है, मेरे नान के कट्टर सुन्नी। वजीराबाद की पुरानी तरीन मस्जिद, मस्जिद बिलाल, जो मेरे नाना ने जिसकी बुनियाद रखी, ठीक है, तो मैंने नहीं देखा कि किसी हमारे साथी, हमारे खानदान मेरे दाद के तशय्यो से है, अहले तशय्यो है, शिया हैं, लेकिन हमने नहीं देखा, क्योंकि रिश्तेदारी होती है, आपके शिया दोस्त है, आपके सुन्नी दोस्त है, आपके भाभी दोस्त है, हमने नहीं देखा कि किसी शिया की जुबान से कभी अली औलादे अली की बेहतरामी हुई हो। तो अगर वो तुम्हारे नबी की औलाद का इतना एहतराम करते हैं, वो बुरा ही सही, एहतराम तो यार तुम्हारे बड़ों का कर रहे हैं ना। यार आपके बाप का जो एहतराम करे, चूड़ा ही क्यों ना हो, तुसी आखदे भावें चूड़ा है, आ मेरे सीने लग, मेरे प्यो दा एहतराम पे करना है। ओ यार पैड़ा ही है। इससे बुरी मिसाल देता हूं, अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई फौतगी होगी है बाप की, आपका मस्जिद का मौलवी अगर नहीं ना आएगा बूढ़ी पे, मौलवी साहब की डिग्रियां बता रहा हूं, नमाजी पक्का, कारी पक्का, हाफज पक्का, हाजी पक्का, राती तहज्जुद पक्की पढ़दा है, तुहाडे अब्बे दी फूड़ी ते नहीं आया, कोलू लंघ गया, ए कौन मरिया? उन्हें जी फलाने दा अब्बा, उन्हें कहा अच्छा चल, वो लंघ गया, लंघ गया। थोड़ी देर बाद झाड़ू देने वाला आया, जमादार, नाली साफ करने वाला, उन्हें आख्या की होया? उन्हें आख्या जी फलाने दा अब्बा फोन, ओहो झाड़ू रखी तू हाथ साफ करके फूड़ी ते आके पै गया। तो आखदा जी बड़ा अफसोस होया, खुदा की कसम उठा के बताओ आपको वो चूड़ा अच्छा लगेगा या वो कारी साहब अच्छे लगेंगे? अल्लाह भला करे यार, दूजे क्यों नहीं बोले? शायद तुहानू चूड़ा लगेगा। क्यों? ओए आपके बड़ों का एहतराम कर रहे और तुसी किसी दी नमाज़ां चटनियां ने, वो नमाज़ों ने अपने वास्ते पढ़ियां ने, तुहाडे वास्ते तो नहीं पढ़ियां।
آپ کو تو وہ لگے گا جو آپ کا حیا کرتا ہے. تو میرے نبی کو کسی کی نمازوں کا فائدہ ہے؟ اس کی اولاد سے اگر نہیں کوئی پیار کرے گا نمازاں لے جاؤ انہوں چوڑے نہیں چنگا لگن دے جی انہیں اولاد دا احترام کرن دے. بات سمجھ میں آ رہی بیٹے؟ تو اہل حدیث بھائیوں ہاتھ جوڑ کر یہ حدیثیں بھی بیان کرو. اور بات سنو، یاد رکھنا میرے نبی نے تو یہ کہا تھا، یہ بھی حدیث ہے کہ حسین منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ.